Zebronics for life. So in the previous class, I have just discussed about the functionality of typecasting. One is typecasting of object, another is typecasting of class, typecasting of variable, and another is typecasting of object. So now I move to this one, downcasting. And now I move to the downcasting. Downcasting is usually done along with the class hierarchy in direction from base class to the derived class. Okay, again I say that another example, that example I have repeat that I told you in the Friday. Suppose in I have the two things. One is head office, another is branch office. In head office, you have the two function. In head office, you have the two function. Like in head office, you have a function void show. Like it is a parent class, and same show function is present in the child class. It is also a show function. Okay. Void show, and it is also a child class. Void show. तो पेरेंट क्लास में भी शो फंक्शन है, चाइल्ड क्लास में भी शो फंक्शन है. अच्छा, अभी क्या होगा अगर मैं एक एग्जांपल के हिसाब से दिखा रहा हूं, तभी आपको पता चलेगा. मैं ओपन कर रहा हूं टेक्स्ट पैड. हाँ सर, नॉइज आस्ती सुबुनी क्लियर, बैकग्राउंड नॉइज गुट्टे मिलियो एडजस्ट कोच माइक. यस ठीक है ना, देख रहा. यस सर. Now I check here. Suppose I define a class. Suppose class parent. I define a function void show function, and in class child extends from parent. Class child extends from parent. It also contains void show function. If I use this concept is called as a method overriding. In method overriding, the function that is defined in the parent class, same function is used in the child class. Now in main method, suppose I have I create a main method here. In main method, what I do, I just create a object of parent class. Parent p is equals to new parent. Parent p is equals to, parent p. I am creating an object of parent class. It is giving a reference to the child class. It means what? ये जो ऑब्जेक्ट है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन at run time it is giving a reference to the child class. Means I am creating a object of parent class, but at run time it is giving a reference to the child class. अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पेरेंट क्लास का फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूँ और चाइल्ड क्लास का फंक्शनैलिटी भी कॉल कर सकता हूँ. दो फंक्शनैलिटी में पेरेंट और चाइल्ड को यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ. लेकिन मैं यहाँ पर
और एक फंक्शन डालता हूं चाइल्ड क्लास में, सपोज यहाँ पर है void display फंक्शन, यहाँ पर और एक फंक्शन है void display फंक्शन। अच्छा, मैं अगर p डॉट शो फंक्शन यहाँ पर करता हूं तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, इट्स गुड। मैं अगर p डॉट डिस्प्ले यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर एरर शो करेगा। Why? Now this display function is not present in the parent, क्योंकि मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास का रेफरेंस दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं सारा फंक्शनैलिटी कॉल कर सकता हूं जो पेरेंट और चाइल्ड में कॉमन है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं ऐसा फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता हूं जो जिसमें एक कॉमन नहीं है, मतलब डिस्प्ले फंक्शन पेरेंट क्लास में नहीं है। तो मैं अभी और एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूं। सपोज यहाँ पर लक्स का गोदाम है, तो मैं यहाँ सर void show रे ଆଉ ଗୋଟେ closing parenthesis ଆଉ ଗୋଟେ extra ମାନେ ଏଟା close ହେଇଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ void show जो ମାନେ parent class ର जो function ଟା first ତିନିଟା এটা হচ্ছে ফাংশন অফ প্যারেনথেসিস, এটা হচ্ছে ক্লাসটা ক্লোজ হলা, এটা ଆଉ ଗୋଟେ ক্লাস স্টার্ট হলা, yes sir বুঝিলা? yes sir তিনটা কোড হলা, এটা হচ্ছে এটা ক্লাস স্টার্ট হলা, এটা ক্লাস এন্ড হলা, and it is a parenthesis of show function, is a function Yes, body, a class body. Okay, yes sir yes sir okay. So when I call this display function, it shows an error because मतलब जो एग्जांपल अभी दे रहा था, आप देखे होंगे कोई भी बिटल शॉप में, जो पान का दुकान में क्या होगा ना, वहां पर एक चीज है, उधर पेप्सी लिखा होगा, थम्स अप लिखा होगा। तो इसमें क्या है, पेप्सी और पेप्सी अगर वो लिखता है तो पेप्सी का ब्रांड वहां पर रहेगा, अगर थम्स अप लिखा है तो वहां पर थम्स अप का ब्रांड रहेगा, मतलब वहां पर पेप्सी का वो कुछ चीज नहीं रख सकता है। रिलायंस में क्या है ना, रिलायंस का कुछ प्रोडक्ट रहता है और दूसरा का प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो चाइल्ड क्लास है, मतलब जो दुकान है, वो क्या किया ना, थम्स अप से लाइसेंस लाया, लेकिन वहां पर वो देख रहा है वहां पर पेप्सी का भी बहुत डिमांड है, तो वो पेप्सी को अपना दुकान में सेलिंग करने के लिए वो परमिशन लाएगा पेरेंट से। ओके, जो सेलिंग होगा उसका भी कुछ परसेंटेज थम्स अप को देना पड़ेगा, बिकॉज थम्स अप इज प्रोवाइडिंग फ्रीजर एंड ऑल द एडवर्टाइजमेंट, तो थम्स अप को भी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो सो दैट अगर मैं इस तरह से नहीं करूंगा तो आप बोलोगे सर ये ऐसा नहीं करके मैं दो फंक्शन को अगर कॉल करना है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पर पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना दो, p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, और मुझे चाइल्ड का कॉल करना है टू न्यू चाइल्ड, इसका ये बना दो। तो यहाँ पर p डॉट शो c डॉट डिस्प्ले अगर करोगे तो होगा, तो यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो c में आप शो फंक्शन को कॉल कर दो, c डॉट शो, ये भी होगा। यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सपोज चाइल्ड, हाँ चाइल्ड। तो ये हम अगर नहीं लिखकर ये दो हम डिफाइन करते हैं, करके इस तरह से कॉल करेंगे, होगा कि नहीं? ये भी होगा। तो हमें ये चक्कर में क्यों जाएंगे? इसमें क्या होगा ना, आपको दो बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो पेरेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट और चाइल्ड के लिए एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आप डिफाइन करोगे। तो यू हैव टू डिफाइन टू ऑब्जेक्ट, पेरेंट और चाइल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, एक ऑब्जेक्ट के मदद से हम सारा चीज यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, तो दैट इज अ बेनिफिट। यहाँ पर सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हो, यहाँ पर क्या है ना, आप दो ऑब्जेक्ट फंक्शनैलिटी को कॉल करने के लिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हो, मीन्स यू हैविंग व्हाट एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस। आप जितना बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार आपको मेमोरी को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उतना बार आपका जो मेमोरी है यहाँ पर लेता है। तो फॉर दैट रीजन तो हम
यहाँ पर क्या करेंगे ना, पेरेंट क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और चाइल्ड क्लास को रेफरेंस दे दिए। तो एक ही ऑब्जेक्ट की मदद से हम सारा फंक्शनैलिटी को कैसे कॉल करेंगे। तो अगर मैं पी डॉट शो करता हूं तो पी डॉट शो कॉल होगा। अगर मैं पी डॉट डिस्प्ले यहाँ पर करूंगा तो पी डॉट डिस्प्ले यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर एरर शो करेगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कास्टिंग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कास्टिंग कैसे होगा, तो एक कैसे कॉल होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चाइल्ड एम इज इक्वल्स टू, ओके, तो इसके लिए हम कास्टिंग बनाएंगे। तो ये कास्टिंग हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा। हेलो सर। आपको डाउनवर्ड कास्टिंग बोले ଆମର କେବଳ ଏଥିରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଟା ରିଡ୍ୟୁସ ମାନେ କମେଇ ଦବ ମାନେ ଦେଖ, ମେମୋରି ସ୍ପେସ। ନାଇଁ डाउनवर्ड कास्टिंग रे ऑब्जेक्ट कमिबनी। डाउनवर्ड कास्टिंग केतेबेले यूज हुए ना, जेतेबेले हमें पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेबा, रेफरेंस दबा चाइल्ड क्लास को, आउ सेही ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें जदी चाइल्ड क्लास रो सब फंक्शनैलिटी को कॉल करिया को चाहूचे ताले पेरेंट क्लास अलाउ करिवनी। सेति पे हमें कास्टिंग करिया को पड़िबो, बुझेला। देखो, it is class employee. So we have a class employee. We have a function work function. Manager extends from employee. It also contain a work function, means method is overriding. If same function is used in a class more than one time, so that is called the method overriding. Okay. So now what happened? Here I define the manage function. I define a manage function. Okay, manage function is not present in which class? It is not present in the child class. Okay, so it is not present in the, sorry, it is not present in the parent class. It is present in the child class. Okay. So now I am creating an object of employee class. मैं parent class का object बनाया, reference दे दिया किसको? Manager class को, मतलब child class को reference दे दिया। तो ये जो EM object है, EM object से मैं वर्क फंक्शन को कॉल करूंगा। तो वर्क फंक्शन को कॉल अगर मैं यहाँ पर करेंगे तो ये आपका ये फंक्शन चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ये ऑटोमेटिक क्या करेगा ना, सुपर डॉट वर्क, मतलब पेरेंट क्लास का फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। जब पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर दिखाएगा आई एम एन एम्प्लॉई। ओके, एंड नेक्स्ट ये शो करेगा आई एम ए मैनेजर। बट through this object, through this EM object, when I call the manage function, so manage function is not present, so it shows a wrong. Now, for that reason, I go for a object casting. For a object casting, I do here what manager M in bracket manager EM. तो यहाँ पर मैं मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया
यहाँ पर मैंने कास्टिंग किया मैनेजर ईएम, मतलब ईएम को यहाँ पर कास्टिंग कर दिया, तो एम डॉट मैनेज। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप सेम ऑब्जेक्ट से एम ऑब्जेक्ट से आप मैनेज फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सो बाय यूजिंग ऑफ एम ऑब्जेक्ट आई कॉल द फंक्शन। अंडरस्टूड? Yes, sir. प्रियंका, बीरू, क्षितिश, राक्षी। Yes, sir. So this is called as the casting. Now I go for another example, heterogeneous and homogeneous collection. Now see there, heterogeneous collection and homogeneous collection. Okay. Homogeneous collection means what? Creating a object of class in the form of a array. Creating object of class in the form of array. तो हम array पढ़े थे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को भी हम array में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक मेमोरी में हम बहुत सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करेंगे. So we are creating a object of class in the form of a array. But if it is giving a reference to the same class, then it is called the homogeneous collection. यहाँ पर देखिए, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इन द फॉर्म ऑफ ए array. My date dates, new my dates. क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इन द फॉर्म ऑफ ए array, but it is giving a reference to the same class. My dates, my dates. तो आप थोड़ा प्रीवियस फ्लैशबैक में जाइए. मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इट इज गिविंग ए रेफरेंस टू द मैनेजर क्लास. सो आई एम क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लास, इट इज गिविंग ए रेफरेंस टू द मैनेजर क्लास. बट हियर आई एम क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ माय डेट एंड इट इज also giving a reference to the same class in the form of a array, then it is called the homogeneous collection. Heterogeneous collection means we are creating a object of class in the form of a array. If it is giving a reference to the other class, then it is called the heterogeneous collection. You have to create a object of class in the form of a array, but if it is giving a reference to the other class, then it is called the heterogeneous collection. मतलब
यहाँ पर मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया मैनेजर को। एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस दे दिया इंजीनियर क्लास को। इसको बोला जाता है हेटेरोजेनियस कलेक्शन। होमोजेनियस मींस क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन द फॉर्म ऑफ ए array and it is giving a reference to the same class is called the homogeneous. Heterogeneous means creating a object of class in the form of a array. If it is giving a reference to the other class, then it is called the heterogeneous collection. Understood this concept? सर होमोजेनियस माने सिमिलर टाइप रो डाटा सब रहबो। Similar data नहीं, similar class को reference दबो means we are creating a object of minded class, giving a reference to the minded class, then it is called the homogeneous. But in other part we are creating a object of employee class, runtime you are giving a reference to the other class. Employee class का object बनाया, reference दे दिया engineer को, employee class का object बनाया, reference दे दिया manager को. Okay. Any doubt in this two? Soumya, Raksi, Kitish, Biru? सर ये होमोजेनियस हेटेरोजेनियस कोन ई ऊप्स रे जा माने को ये तुम्हें भूली जाओ ऊप्स कथा। एटा होची इनहेरिटेंस चैप्टर टा मु पढौची, बुझी होची। ऊप्स किछि पढौने, ऊप्स तो सरी होला। हमें इंप्लीमेंट करछे रियलिटी रे। बुझे एटा एडवांस जाबा रे जेतरा वेब डेवलपमेंट करिवो आ जेतरा तमे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करिवो एटा यूज होबो। ऑब्जेक्ट को केमती मिनिमाइज करिवो। हमें जेते ऑब्जेक्ट बनेवा सेते मेमोरी क्रिएट होबो। एटी ऑब्जेक्ट रो रेशियो टा को हमें कोन करिवो ना चेंज करिवो। बुझे होची। बुझिए ना किछि डाउट अछि कार? तो मु तले प्रैक्टिकली को शो करू छे। Now check this example. Class animal void who am I function. Class animal void who am I function. Dog extends from animal, it contain who am I function. Okay, class animal void who am I function. Dog extends from animal, then who am I function. Super dot who am I means through the super keyword we are calling this function. Cow extends from animal, void who am I function. Snake extends from animal, then who am I function. Again I explain. यहाँ पर एक एनिमल क्लास बनाया, उसमें से void who am I फंक्शन डिफाइन किया जो दिखाएगा जेनरिक एनिमल,
Then dog extends from animal. यहाँ पर हुआ में फंक्शन यूज हुआ, डॉग चाइल्ड क्लास हो गया, एनिमल पेरेंट हो गया, मेथड ओवरराइड हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर सुपर कीवर्ड के थ्रू से हुआ में फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया. Cow extends from animal. Cow extends from animal. It also contain a हुआ में फंक्शन, मेथड ओवरराइड हुआ. Snake extends from animal. वर्ड हुआ में फंक्शन. अभी देखिए क्या हो रहा है. मैंने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एनिमल ref1 इक्वल टू न्यू एनिमल, रेफरेंस दे दिया 3, मतलब यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट में बना सकता हूँ. एक ऑब्जेक्ट में हम 3 क्लास को रेफरेंस दे सकते हैं. एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, वही ऑब्जेक्ट की मदद से स्नेक को रेफरेंस दे दिया, वही 1 ऑब्जेक्ट में मैं डॉग को रेफरेंस दे दिया, वही 2 ऑब्जेक्ट में मैं काउ को रेफरेंस दे दिया. तो ये जो रेफरेंस 0 में मैं अगर हुआ में फंक्शन को कॉल करता हूं तो ये स्नेक फंक्शन को कॉल करेगा. जब रेफरेंस 1 हुआ में मैं कॉल करूंगा तो डॉग कॉल होगा. रेफरेंस 2 हुआ में मैं अगर कॉल करूंगा तो यहाँ पर काउ कॉल होगा. ओके, तो हुआ में स्नेक यहाँ पर शो करेगा, हुआ में डॉग डॉग शो करेगा, हुआ में काउ काउ शो करेगा. सो नाउ आई रन द प्रोग्राम. वो बिना तो उनको नशा देखी को करा आज तो पढ़ाया कर तेरा ना देखी इसका जरा अब क्या करना है. आज तो Okay, understood this program or any doubt? हेलो सर. हाँ, जो एनिमल रेफरेंस है जो जो क्लास टेस्ट 3 रा सी पार्टला टिके आउ थोड़ा एक्सप्लेन कर देबे की. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या किया ना, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. एनिमल ये पेरेंट क्लास है और डॉग काउ स्नेक ये सब चाइल्ड क्लास है. तो एनिमल क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस भी दिया एनिमल को, लेकिन यहाँ पर 3 साइज डिफाइन किया. 3 साइज मतलब ये जो REF ऑब्जेक्ट में मैं 3 क्लास को रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन वो चाइल्ड क्लास होना चाहिए, मतलब एनिमल का चाइल्ड होना चाहिए. तो रेफरेंस 0 न्यू स्नेक, तो स्नेक, रेफरेंस 1 डॉग, reference to cow. So it is giving a reference to a snake, giving a reference to the dog, giving a reference to the cow. Okay, तो snake को reference दिया, dog को reference दिया, cow को reference दिया. तो reference 0 हुआ में, जब हुआ में फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिक ये किसका फंक्शन को कॉल करेगा? स्नेक, स्नेक क्लास का हुआ में फंक्शन कॉल करेगा. दिस वन, सॉरी, snake. Last one. Last one. Okay, it is your snake. Now when I use ref1 dog, okay, so यहाँ पर ref1 हुआ मैं फंक्शन अगर मैं कॉल करता हूँ, ये डॉग क्लास का फंक्शन को कॉल करेगा. दिस वन, तो ये ऑटोमेटिक किसको कॉल करेगा ना, पेरेंट क्लास को फंक्शन कॉल कर देगा. हाँ, जेनरिक, बिकॉज वी आर यूजिंग सुपर डॉट हुआ में.
तो नेक्स्ट में मैं जो रेफरेंस 1 2 काउ काउ को रेफरेंस दिया और रेफरेंस टू हुआ मैं फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, तो ये कॉल कर देगा किसको ना, जो आपका है काउ, इसको शो करेगा। ओके जी सर। ये हो गया आपका होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इस तरह से होगा सेम। सर जदि मैं नॉर्मल नहीं करथान तीनटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करी कि ना ताको कॉल करिया पड़ता। हाँ 3 थर ऑब्जेक्ट में। ऐसा Okay, so next is I define another concept that is use instance of. Okay, तो पहले कास्टिंग का वर्क हम देखते हैं। तो कास्टिंग कहाँ पर यूज होगा और इंस्टेंस ऑफ क्या कहाँ पर यूज होगा। सो इट इज लेसर टाइमिंग। यूज इंस्टेंस ऑफ एक कीवर्ड है जो यूज किया जाता है। आप जो ऑब्जेक्ट बनाकर आप रेफरेंस दूसरा क्लास को दे रहे हो, यूज इंस्टेंस ऑफ क्लास चेक करेगा कि आपका जो क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो किसको रेफरेंस देगा एट रन टाइम। मींस इट इज वेरीफाइंग दैट it is referencing to which class. So that is the work of instance of. Instance of operator पढ़े थे ऑपरेटर चैप्टर में, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंस्टेंस ऑफ। इंस्टेंस ऑफ यूज होता है when you are creating a object of class, the object is belongs to which class. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली किस क्लास को बिलोंग्स करता है। कभी कभार हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर चाइल्ड को रेफरेंस दे देते हैं। कभी कभार हम क्या करते हैं ना, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाकर उस ऑब्जेक्ट की मदद से चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन कर देते हैं ऑपकास्टिंग में। तो वहीं पर कंफ्यूजन होता है। तो इंस्टेंस ऑफ क्या करता है, तो आपका एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली इट बिलोंग्स टू द व्हिच क्लास दैट यू डिफाइन। क्लियर? So that programmatically I will show you tomorrow. Okay, तो सेम टाइम में मैं इसको प्रोग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगा और उसका कंसेप्ट और एक बार रिपीट करूंगा। Okay? हेलो सर। हाँ समय को सर जो ऐड कर दे से पिल्ला को। हाँ 9:30 क्लास है, हम ऐड कर दो उसको। Yes.